यूनियन बजट 2023-24 कई मायनों में खास रहा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक महिला वित्त मंत्री ने महिला राष्ट्रपति के संयुक्त सभा के संबोधन के बाद अपना यूनियन बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने सुबह राष्ट्रपति भवन का दौरा किया और राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ऐसी छठी वित्त मंत्री हैं जो लगातार अपना 5वां बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण अब तक का सबसे छोटा दिया, जो 87 मिनट तक चला। इसमें सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ जरूर था। अपने बजट भाषण के शुरुआत में ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। वर्ष 2023-24 में भारत का आर्थिक ग्रोथ लगभग 7% रहने वाला है, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी अवस्थाओं में से सबसे अधिक है। इस दौरान संसद में भारत जोड़ो यात्रा के नारे भी लगते रहे, लेकिन निर्मला सीतारमण अपना भाषण देती रहीं। 9 सालों के बाद टैक्स स्लैब में मध्यम वर्ग के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया गया है। आपने अब तक बजट के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान चुके होंगे। इनकम टैक्स में मिली छूट और रेलवे के अब तक के सबसे बड़े एलोकेशन के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। Tonight on Himalayan Hunt, we look at the big picture. India is now pledged to be the fastest growing economy in the world. This budget support India as an emerging power. Over few minutes, we will unpack the budget for you. We have put some big takeaway from the budget. Hello and namaskar. This is Himalayan Hunt and you watching Budget 2023 with Sanjay Kumar. Start with the fundamental. An emerging superpower, what needs the most? Roads, infrastructure, ports, housing project that create the job, rise the productivity and improve the connectivity. जो भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% बढ़ाकर $122 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे इन एसेट्स का विकास किया जा सके। बजट में टैक्स स्लैब में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत देते हुए ये ऐलान किया कि अब 7 लाख रुपए की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees.
My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crore. यह सीमा पहले केवल 5 लाख रुपए तक ही थी। यह छूट न्यू टैक्स रिजिम के तहत की गई है। आपको बता दें कि भारत में इनकम टैक्स के लिए 2 व्यवस्थाएं हैं। इसमें एक ओल्ड टैक्स रिजिम है और दूसरा न्यू टैक्स रिजिम है। नया टैक्स स्लैब 0 से 3 लाख रुपए तक 0% टैक्स, 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10% है और 9 लाख से 12 लाख के लिए 15% है और 12 लाख से 15 के लिए 20% है, 20 लाख से ऊपर के लिए 30% है। न्यू टैक्स रिजिम बाय डिफ़ॉल्ट है और वहीं ओल्ड टैक्स रिजिम अब ऑप्शनल है। अब जब आप ITR फाइल करेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम बाय डिफ़ॉल्ट होगा और वहीं अगर आप पुराने टैक्स रिजिम में बने रहना चाहते हैं तो आपको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। बजट में 3 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों को कर में छूट दी जाएगी। क्या क्या चीज़ें होंगी महंगी? सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, विदेश से आने वाली चांदी की चीज़ें और किचन चिमनी महंगी होंगी। क्या क्या चीज़ें होंगी सस्ती? इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल, कैमरे के लेंस, खिलौने, ऑटोमोबाइल, LED टीवी और बायोगैस जैसी चीज़ें सस्ती होंगी। बजट 2023 में वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम को 4.5 लाख से बढ़ा करके 9 लाख रुपए कर दिया गया है। यूनियन बजट 2023-24 में युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में PM कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसर प्रदान किए जाएंगे। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। बजट में 740 एकलव्य मॉडर्न आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 28,000 शिक्षकों की और सहायक कर्मियों का भर्ती किया जाएगा। बजट में अगले 3 वर्षों के लिए 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। यूनियन बजट 2023 में महिला सम्मान बचत पत्र, इससे महिलाओं के 2 लाख पर 7% का ब्याज मिलेगा। 2023 में वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए PM प्रमाण योजना का शुरुआत किया जाएगा। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।
बजट में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर 35,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और वहीं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बजट में पीएम आवास योजना को 66% बढ़ाकर 29,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट 2023 में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये 3 अलग अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा। Governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of excellence for artificial intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy to unleash innovation and research by startups and academia. A national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. बजट 2022-23 के लिए संशोधित राजकीय कोष घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। वहीं वर्ष 2023-24 के लिए राजकीय कोष घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है। रेलवे को अब तक सबसे बड़ा बजट आवंटित किया गया है। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश का प्रावधान किया गया है। A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. यह 2013-14 में दिए गए रेलवे आवंटन का करीब 9 गुना है। खाद्यान्न और बंदरगाहों को जोड़ने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर, एयरड्रोम का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। जनजाति समूहों के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन शुरू। बजट में जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 100 स्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। बजट में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाने का प्रावधान है। बजट 2023-24 मुख्य रूप से कुल 7 बिंदुओं पर केंद्रित है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सप्तऋषि अमृत काल में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, भावित क्षमताओं को उभारना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र है। बजट 2023-24 में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए ऋण को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इसी से जुड़े स्टार्टअप में युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। बजट में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वांचल के विकास पर जोर दिया गया है। नीतियों में वंचितों को वरीयता दी गई है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयास से सभी नागरिकों के जीवन, बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया गया है।
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के 5 सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कोरोना महामारी के दौरान हमने यह सुनिश्चित किया कि किसी का पेट खाली न हो और 28 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। 2 लाख से अधिक खर्च कर कर इस योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया एक चमकते हुए सितारे के रूप में देख रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्तों पर है। दुनिया भर में सुस्ती के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था 2023 और 24 में लगभग 7% के अनुमान से बढ़ने की उम्मीद है। If you like our views, then subscribe our YouTube channel.